प्रक्रिया की शुरुआत इस सोच से हुई थी कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो संघर्ष के कामों में जुड़े हुए हैं और संघर्ष की प्रक्रियाओं में जुड़े हुए हैं, उन्हें ये महसूस हो रहा था कि संघर्ष बहुत ज़रूरी है। संघर्ष राजनीतिक मूल्यों के लिए, एक बेहतर समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, पर उन संघर्षों के साथ साथ ही बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं भी हो रही हैं जो निर्माण के बारे में बात कर रही है। तो ऐसे बहुत सारे संघर्षी लोग हैं जो निर्माण की प्रक्रियाओं के साथ भी जुड़े हुए हैं. So the people who were involved in the struggles and a lot of resistance movement also felt the need of bringing together groups who are actually, along with resistance, are also involved in processes of reconstruction and processes of creating alternative models. So एक तरफ हम ये तो कह रहे हैं कि हमें किस तरह की प्रक्रियाएं नहीं चाहिए, पर क्या हम उन प्रक्रियाओं का निर्माण कर रहे हैं जिस तरह की प्रक्रियाओं के लिए हम हाँ बोल रहे हैं, या उन प्रक्रियाओं के तरफ काम कर रहे हैं जिन्हें हम कह रहे हैं कि ये इस तरह का समाज हमें चाहिए. So working towards an alternative society and worldview. So इस प्रक्रिया की शुरुआत इसी सोच से हुई कि किस तरीके से हम इन तरह के लोगों को साथ ला सकते हैं. So how we can bring together people who are working on these alternative processes, imaginations together to a common space. तो इस प्रक्रिया की शुरुआत में हमने एक कोशिश ये की कि किस तरीके से फिजिकल गैदरिंग्स की जाए. So we can organize physical confluences where people can come together and discuss with each other, learn from each other, critically engage, and probably collectively move towards an alternative society or societies. तो सोच ये थी कि किस तरीके से हम एक साथ आकर काम कर सकें, एक दूसरे से सीख सकें, एक दूसरे के साथ काम कर सकें और एक दूसरे को इस तरीके से चैलेंज कर सकें कि हम सब एक ऐसे समाज की ओर बढ़ सकें जैसा समाज हम अपने, एक वैकल्पिक समाज जो हम अपने कामों में सोच रहे हैं और उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं. तो उस सोच से ये प्रक्रिया की शुरुआत हुई और अभी तक 20 इस तरह के संगम हो चुके हैं जो काफ़ी मुद्दों पे किए गए हैं. So around 20 संगम्स have happened until now. इन ये मुद्दों पे हुए हैं, एज इन अर्थशास्त्र का मुद्दा हो गया, लोकतांत्रिक व्यवस्था का मुद्दा हुआ, युवाओं के साथ काम करने का मुद्दा हुआ, और ये कई रीजन्स में भी हुए हैं, जैसे कि कच्छ में जो आज के हमारे स्पीकर्स जहाँ से जुड़े हैं वहाँ पे, या पश्चिमी हिमालय के स्तर पर. So just to translate in terms of how these physical gatherings have been organized. So they have been thematic and they have been regional. Thematic in terms of what sort of alternative economy we want, what sort of an alternative governance systems we want. And they have also been in terms of regions like Western Himalaya or Kutch region, which is sort of trying to bring together various groups and networks working on alternatives in these specific regions. और इन सभी को एक व्यापक तरीके से किस तरीके से सोचा और समझा जा सकता है. इसके अलावा एक बहुत एक्टिवली ये भी कोशिश है कि विकल्प संगम की बहुत सारी ऐसी कहानी, वैकल्पिक प्रक्रियाओं की ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आती हैं. सो तो उनको कैसे हम एक सोच के साथ डॉक्यूमेंट कर सकते हैं. तो उसके लिए आप अपनी स्क्रीन पे ये वेबसाइट का लिंक देख रहे हैं, जिसे आप विजिट कर सकते हैं, यू कैन और उस पर और पढ़ सकते हैं. So the idea was that also not just organizing these confluences, but also bringing out these stories and documenting and researching more about them. So the idea was to have a portal like this, which can have a sort of a repository of looking at various stories and events and perspectives on alternatives. So you can visit this website. अभी इसमें करीबन 1500 से 1600 कहानियाँ. Currently there are 15 to 1600 stories on this website. And please feel free to visit it. We would be very happy if you visit it.
And sorry, something that we will later get on to is what you see on the screen, is that through this process has also emerged a sort of understanding of um, uh, how do alternative transformations or alternatives emerge, what are the values that hold them together. And this sort of framework that has gone through various processes, various sangams, which we will very briefly talk about once our speakers are done talking, and then we'll have a discussion. तो ये एक ढांचा विकल्प संगम की प्रक्रिया से उभर के आया है, जो बहुत सारे अभी तक के सारे विकल्प संगमों में इसके बारे में बात हुई है कि एक वैकल्पिक समाज की तरफ बढ़ने के लिए किस तरीके की व्यापक सोच होनी जरूरी है, और उस व्यापक सोच में किस तरीके से हमारे मूल्य हमारा आधार बनाते हैं। तो इस ढांचे के बारे में हम थोड़ी बात बाद में करेंगे, जब हमारे स्पीकर्स बोल चुके होंगे उसके बाद हम इस ढांचे के बारे में बात करेंगे। और आज के विकल्प वार्ता के बारे में मैं बहुत संक्षिप्त में बताना चाहती हूँ। तो आज हमारे साथ सुरेश छंगा जी जुड़े हुए हैं, छाया हैं और भारती हैं कुनरिया विलेज पंचायत से। So I will very briefly mention about today's Vikalp Varta. Don't want to take much more time. So today joining us is Suresh Changa, Chaya and Bharti from Kunaria Village Panchayat. Just to very briefly introduce them, Suresh Changa is Sarpanch of Kunaria Village, and he was in the past a lecturer in the Department of Social Work in Kutch University, and he's also a district president of Panchayat associations, which have around 632 panchayats in Kutch district. तो सुरेश छंगा जी जो हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं वो सरपंच है कुनरिया पंचायत के, और इससे पहले वो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क कच्छ यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे, और वो सरपंच एसोसिएशन के हेड भी हैं, सॉरी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, जो सरपंच एसोसिएशन 632 पंचायत का एसोसिएशन है। हमारे साथ छाया जुड़ रही है। छाया ANM की सदस्य हैं, वो हेल्थ कमेटी की सदस्य हैं, और कोविड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों में वो इन्वॉल्व रही हैं और उन्होंने बहुत सारी ट्रेनिंग भी की हैं, जिसके बारे में आज वो बात करेंगी। हमारे साथ भारती जुड़ रही है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी और कोविड रिस्पांस कमेटी की सदस्य हैं, और वो काफ़ी महिलाओं और बच्चों के साथ काम करती हैं, और कोविड में किस तरीके से बच्चों की साइकोलॉजी में फ़र्क पड़ा है उसके बारे में काम कर रही है। To just briefly translate and introduce Chaya and Bharti. Chaya is ANM, which is auxiliary nurse and midwife, and she is part of the health committee in Kunaria, and she's also been coordinating a lot of response work from the health committee side for COVID. Bharti is part of the COVID response committee and disaster management committee, and she has been involved in working with women and children, and especially working on the impact that children might go through in times like these when they're stuck in their homes and under lockdown. So I think I forgot to introduce myself. So just very briefly to introduce myself also, I'm Srishti. I work with Kalpavrish. I help in coordinating Vikalp Sangam process, and of course interested in documenting, knowing more about these alternative process. मैं सृष्टि हूँ, मैं कल्पवृक्ष संस्था के साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं विकल्प संगम प्रक्रिया के संचालन में मदद करती हूँ, और मैं वैकल्पिक कहानियों और इस तरह के प्रयासों के बारे में जानने और लिखने में इंटरेस्टेड रहती हूँ। तो बिना किसी देरी के मैं सुरेश जी आप पहले बात करेंगे, तो सुरेश जी को इनवाइट करना चाहूँगी कि अब आप हमें लीड करें, और
जूही हमारी मैं ब्रीफली, बहुत ही ब्रीफली अपने इन साथियों के बारे में भी मेंशन करना चाहूंगी जो इस विकल्प वार्ता की प्रक्रिया को बहुत अच्छे से होल्ड करे हुए हैं। जूही, आशीष, विनय, संगीता, सुजाता. So I'll just briefly mention the team that is around holding this process, Vikalp Varta process. Sujata, Ashish, Juhi, Vinay, and Sangeeta. And they will also be helping us in navigating translations today. So over to you, Sujesh ji. आप हमें बता सकते हैं? Thank you. ओके, नमस्कार। आज के इस वेबिनार में ज्वाइन हुए सभी साथियों को नमस्कार, और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ आज की मैं बात शुरू करूं तो एक्चुअली पंचायतों की बहुत बड़ी साझेदारी रही है और जिम्मेदारी रही है कोविड-19, और उस सिलसिले में जहाँ तक बात है, मेरी आवाज मिल रही है? जी सुरेश जी, आपकी आवाज आ रही है। ओके, वेल, तो पंचायतों की बहुत बड़ी भूमिका रही है और आने वाले दिनों में भी पंचायतों को बहुत बड़ा रोल प्ले करना होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत की बड़ी आबादी जो है गांवों में रहती है, और इस सिलसिले में पंचायतों को जो है वो प्रिपेयर रहना होगा ये महामारी और इससे और आने वाली महामारियों के साथ या डिजास्टर के साथ जो है वो प्रिपेयर रहना चाहिए। तो पुनरिया पंचायत ने भी ऐसे प्रयास किए इस दौरान कि लोगों को ये कोविड-19 के संक्रमण से बचाया जा सके, और सार्वजनिक रूप से सभी की साझेदारी के साथ, लोगों की भागीदारी के साथ ये कार्य हुए हैं। तो अब तक जो है वो बहुत अच्छे से रिजल्ट हम यहाँ पर दे पाए हैं। मैं जो आज की बात को बढ़ाते हुए बात करूं तो मेरे साथी कोविड रिस्पांस टीम के 2 सदस्य भी मेरे साथ जुड़े हैं, वो आने वाली बात में हमसे बात करेंगे। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हुआ, तो वो प्रेजेंटेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली पुनरिया पंचायत जो है वो 3 गांव से जोड़कर बनने वाली एक ग्रुप पंचायत है, और इसमें जो है पुनरिया, नौखानिया और रुद्र माता, ये 3 विलेज आ रहे हैं। और मेरी स्क्रीन आप सभी को दिख रही है, राइट? जी दिख रही है जी। ओके, वेल, तो जो फैमिलीज हैं वो 751 फैमिली हैं, और पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो 3521 की ये पॉपुलेशन है। जेंडर रेशियो है हमारा 937, और वोटर्स जो हैं हमारे वो हैं 1854। और लाइवलीहुड की अगर मैं बात करूं तो ड्राई लैंड फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री और लेबर जो है वो पूरा लाइवलीहुड इस पर डिपेंड्स है। तो शुरुआती दौर में हम जब अवेयरनेस, ये कोविड-19 जो है लोगों को पता ही नहीं था, तब टेलीविजन, रेडियो के माध्यम से लोगों को ये जानकारी मिली कि ये कोई महामारी है और इससे बचने के लिए हमें सभी को प्रयास करने होंगे। तो पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम जो है पुनरिया पंचायत में जो बहुत साउंड है, सोशल नेटवर्क के माध्यम से, लाउड स्पीकर के माध्यम से, या फिर लोगों को ऑटो रिक्शा के माध्यम से ये है सभी लोगों को बताया गया कि इसमें हमें कैसे जो है वो काम करना है और कैसे इससे बचना है। तो कोविड-19 जो है उसको समझने के लिए, लोगों को समझाने के लिए जो हमने है वो नोटिस बोर्ड पर या वॉइस कॉल करके या ये सारी प्रोसीजर करके लोगों को समझाया, और उससे कैसे हमें बचना है, क्या प्रिकॉशन लेने हैं, वो आपके सामने आपकी स्क्रीन में दिख रहे हैं। और जहाँ तक बात है पूरे गांव को सैनिटाइज करना हो, या हैंड वॉश स्टेशन खड़ा करना हो, या हैंड वॉश डे को हम जैसे 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो हर दिन कैसे सेलिब्रेट करना है, दिन में 20 या 25 बार हमें अपने हैंड हैं वो प्रॉपर साबुन से या सैनिटाइजर से कैसे धोने हैं, ये सारी चीजें जो है लोगों को बतानी थी। क्यों हम सफल हुए यहाँ पर, उसकी मैं अगर मैं बात करूं तो हमने जो है पुनरिया पंचायत में लास्ट 3 साल में 191 ऐसे अवेयरनेस के प्रोग्राम किए, जब उस दौरान हमें
ये सपोर्ट मिला लोगों का कि ये या कोई और प्रोग्राम करना है तो लोगों की एंगेजमेंट कैसे बढ़ेगा, लोगों की साझेदारी कैसे बढ़ेगी। तो ऐसे छोटे छोटे 191 अवेयरनेस प्रोग्राम करने से लोगों की साझेदारी है वो बढ़ती गई। पंचायत के जो दौरान जो कुछ काम पंचायत कर रही है उसमें लोगों की साझेदारी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, तो वो साझेदारी है लोगों की आती गई। आपके सामने एक ये फोटोग्राफ दिख रहा है, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन जीपीडीपी, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है और 243G में पंचायतों को प्लान करने की बात कही गई थी, लेकिन उसमें पंचायत के हर एक तबके के लोग उसमें इन्वॉल्व हों प्लान में। उसके लिए बोर्ड मीटिंग कैसे करनी है, फोकस ग्रुप के साथ डिस्कशन करनी है, महिलाओं के मुद्दे हैं, बच्चों के मुद्दे हैं, सोशल जस्टिस के मुद्दे हैं, कारीगरों के मुद्दे, ये सारे मुद्दों पर बात हो और ये सारे मुद्दे हैं वो प्लान में आए। उसके लिए हमने PRA किया और ट्रांजेक्ट वर्क से भी ये प्लान ऑलरेडी हमारा दिसंबर में बन चुका था। इस प्लान में डिजास्टर रिलेटेड जो एक्टिविटीज है वो भी हमने डाली है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट कमिटी का रोल इस दौरान क्या रहता है, वो सारी चीजें जो है हमने एक प्रयास किया था। आप देख सकते हैं ग्राम सभा में भी कितने लोग आ रहे हैं, तो ये ट्रांसपेरेंसी है, वार्ड सभा है, जनरल सभा है या ग्राम सभा, ये सारी जगह पर लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहे, उसके लिए हमने जो है पीपल्स पार्टिसिपेशन पर ज्यादा फोकस किया और उससे जो है लोगों की साझेदारी हर काम में बनने लगी। आप एक आप स्क्रीन के राइट साइड में एक फोटोग्राफ देखोगे, वहां पर बोर्ड मेंबर के साथ मीटिंग हो रही है। सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए ये मीटिंग जो है आने वाले शॉर्ट टर्म के लिए प्लान हो रहा है कि आने वाले 3 महीनों के लिए, आने वाले 6 महीनों के लिए पंचायत को क्या करना होगा, कैसी सुविधाएं गांव में डेवलप करनी होगी कोविड-19 को ध्यान में रखकर। तो ये लोगों का इन्वॉल्वमेंट से जो है हम प्लान करते हैं, ये आपके सामने है। नेक्स्ट, अब जो ये बात है हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटी की बात हो रही है, वो हाउस होल्ड सर्वे कैसे हुआ और काम कैसे हुआ, ये बात करेंगे छाया जी। इसके पहले मैं थोड़ा सा सुरेश भाई, मैं संक्षिप्त में ट्रांसलेशन कर लूँ? बिल्कुल। वैसे तो जूही चैट बॉक्स में लिख भी रही है, लेकिन बहुत ही संक्षेप में। Just to give a very brief translation, not much is needed because the slides were already there, and also Juhi has been typing into the chat box. But basically what Suresh Bhai has said is that he's talking about the responsibility, the fact that all panchayats, that is village assemblies and councils across India, have a major responsibility in the times of the COVID-19 crisis. In Kunaria, in their village, they also recognize this, and they were already doing a lot of people's participation in various different kinds of activities. So for COVID, in the 3 villages that are contained in the Kunaria Panchayat, they did a lot of mass awareness programs, spreading the message about what kind of safety precautions have to be taken, what is the virus about, putting them up on notice boards, taking rickshaws around, doing voice calls, and also ensuring that there are enough hand washing stations, creating awareness about sanitization and so on. This was based on the fact that in the last 3 years, there have been 191 awareness programs on various different issues: women's issues, sanitation issues, livelihoods issues, food issues, etc. And so already there was a base of a lot of participation in the village, which made this COVID awareness and safety programs much easier. They have also been involved with doing the Gram Panchayat development plan, which is actually a constitutional provision. It doesn't actually happen in many villages in India, but here in Kunaria, they have managed to make sure that it happens, which includes different issues of the village: women's issues, children's issues, worker issues, environmental issues, sanitation issues, and so on. And also how to ensure the accountability of the panchayat for the entire village. And in that also they've talked about disaster management, which again enabled much better response to COVID. Thanks. सुरेश भाई कौन बोले, छाया बहन के भारती बहन? छाया बहन। नमस्ते। हेल्थी एट होम अभी हमारा पूरा विश्व में
वो कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तभी हम और हमारा कुनरिया गांव भी इस लड़त में शामिल है। ग्राम पंचायत के सहयोग से हमने विभिन्न कार्य किए हुए हैं। उसमें हमने हाउस होल्ड सर्वे किया है, जिसमें हमने अलग अलग टीम बना के जैसे कि आशा बहन है, आंगनवाड़ी कार्यकर है और मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर है और जो ग्राम्य संजीवनी समिति के सदस्य है, उसको मिला के हमने एक एक टीम बनाई और उनको हमने सर्वे के लिए भेजा था। और उसमें किसी को बुखार, खांसी, सर्दी या गले में कुछ तकलीफ है तो उसकी जानकारी ली, और दूसरा कि जो बाहर से कोई लोग आए हैं तो उसकी भी जानकारी ली। हमारे यहाँ 3 परिवार ऐसे थे जो बाहर दूसरे राज्य से आए हुए थे, उसको हमने होम क्वारंटाइन किया 14 दिनों तक और उसकी स्क्रीनिंग भी की। और होम क्वारंटाइन के सतत हमने कंटिन्यू हमने मॉनिटरिंग भी किया। उसमें हमको ग्राम पंचायत से ज़्यादा सहयोग भी मिला और उसकी जो जीवन जरूरी चीज वस्तु खरीदने का है वो ग्राम पंचायत और जो ग्राम्य आरोग्य संजीवनी समिति है उसकी हमने मदद ली और उसको वो जो भी जरूरी चीज वस्तु है वो उपलब्ध करवाई। और दूसरा हम देखें तो 60 साल से ज्यादा बुजुर्ग लोग है, वो एक हाई रिस्क एज है, तो उसमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज ऐसी बीमारी ज्यादा रहती है। तो उसको हम घर घर जाके होम विजिट करके उसको मेंटली सपोर्ट किया और उसको घर से बाहर न निकलने के लिए सपोर्ट किया। और उसको जो मेडिसिन उपलब्ध करवानी होती है वो भी हमने और ग्राम पंचायत सहयोग से हमने करवाई। और दूसरे जो हमारे लाभार्थी होते हैं जैसे कि गर्भवती महिला है और स्तनपान कराती महिलाएं है, वो हॉस्पिटल अभी नहीं जा सकती है, तो उसके लिए आयरन फॉलिक टेबलेट है, कैल्शियम टेबलेट है, वो भी उपलब्ध करवाई। और उसके होम विजिट के दौरान उसको मेंटली भी सपोर्ट किया। हमने गर्भवती जो महिलाएं हो उसको पहले से बर्थ माइक्रो प्लान तैयार कर दिया था कि जैसे कि डिलीवरी की डेट नजदीक है तो उसको डेली कॉल करके हम पूछते थे कि आपको कोई तकलीफ हो तो हमको बताने का। और फिर हमारे पास एक और भी चैलेंज था कि रूटीन इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन वो करवाना जरूरी है। पर जब ये कोविड-19 नहीं था, महामारी नहीं थी, तब हम एक साथ भीड़ इकट्ठा होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। पर अभी ये कोविड-19 महामारी चल रही है तो हमको वो भीड़ इकट्ठा ना हो इसलिए ज्यादा देखना पड़ता है। तो इसलिए हमने ग्राम पंचायत का पहले सहयोग लिया। उसमें पहले ग्राम पंचायत द्वारा लाउड स्पीकर से अगले दिन सभी को बोला कि भीड़ इकट्ठा नहीं हो और मास्क या मुंह ढक के आने का जब भी ममता दिन होता है तब। और हमने 2 दिन पहले ही ड्यू लिस्ट तैयार कर दिया था कि जो भी आता है उसको टाइम सर आने का, उसको टाइम दे दिया था कि आपको 9 बजे आना, 9:30 बजे आना। और जब भी ममता दिन था तब पहले से 6 स्टेप हैंड वॉशिंग के बारे में बता के फिर ही उसको वैक्सीनेशन किया और उसको कोविड-19 के बारे में समझाया और वैक्सीन है कितनी महत्व है उसके बारे में भी समझाया। उसके बाद जब मनरेगा लेबर जैसे कि मनरेगा अभी चल रहा है, लेबर को हेल्थ स्क्रीनिंग की और वो हमको ग्राम पंचायत के द्वारा बहुत सारा सपोर्ट मिला। और हम देखें कि कई लोग हैं वो बाहर व्यवसाय के लिए जाते हैं और कई लोग हैं वो यहाँ पे गांव में ही जैसे कि करियाना की दुकान है या फिर पंचर की दुकान है, ऐसे लोग से वो उसका हेल्थ स्क्रीनिंग करके सर्टिफिकेट देने का था। पर हमारा जो पीएससी है वो 35 किलोमीटर दूर है, तो हम वहां पर हम देखें तो कोई पर्सन जल्दी से नहीं जा सकता। इसलिए पंचायत द्वारा हमको सुझाव दिया गया कि आप यहाँ पर ही सब सेंटर पर ही जो स्क्रीनिंग करें तो बहुत अच्छा है। वैसे हमने फिर मेडिकल ऑफिसर के साथ कन्वर्सेशन करके हमने सब सेंटर पर ही 38% को हेल्थ सर्टिफिकेट इश्यू करवाया। और अभी हम देखें तो कोविड-19 महामारी चल रही है, ऐसे नहीं पहले भी हम ग्राम पंचायत के सहयोग से बहुत सारे हेल्थ के प्रोग्राम कर चुके हैं। थैंक यू। ट्रांसलेट करना चाहेंगे आशीष जी या सीता भारती? मैं 1 मिनट में जल्दी से कर लेता हूँ। Again, Juhi has put much of it on the chat box, but just to quickly translate. So Chaya Ben was talking about the fact that they
Immediately once the COVID crisis hit, they immediately did a household survey of all the 735 families, and also 3 families that had returned from outside were isolated in their own homes for a couple of weeks. They also reached out to all the elders or pregnant women or others who were at risk or who were vulnerable and who could not otherwise travel out, let's say, to get medicines or for other basic services, to make sure that they had all the necessary things that they needed at home. Also creating awareness about different kinds of safety measures like physical distancing that were needed in this time. And a very important thing also about reaching out to people who could be having mental stress or emotional problems. Under lockdown, we know that across the world, this is a major issue, that people are having all kinds of psychological, emotional problems. So they also reached out to try and help with that. The Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee Scheme was not completely stopped. I think many people continued working, unlike in many other parts of India. But in order to do that, continued working, they were given proper health screening so that there's no possibility of transmission. The same thing with street vendors, so that they don't have to stop working, but they could continue working with safety. And she mentioned that the primary health center is 38 kilometers away. This is another huge problem in India, that even a primary health center, which should be in every panchayat, is not available. So here it's 38 kilometers away. So they use the sub-center that is in the village, in the panchayat, to make sure that screening and safety measures, to the extent possible, for at least a part of the village, was done in the sub-center itself. So people don't have to travel very long distances for these basic needs. Thank you. Parthiban. नमस्कार, मेरा नाम गर्वा भारती है और मैं डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी की सदस्य हूँ। पूरा देश जब कोरोना महामारी से लड़ रहा है, तो इस महामारी से लड़ने में हमारा गांव भी कटिबद्ध है। सरपंच श्री सुरेश भाई छांगा के नेतृत्व के नीचे गांव के 3500 लोग इस लड़ाई में जुड़ गए हैं। उसमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, जवान, सब लोग इस लड़ाई में जुड़ गए हैं। अब इस लॉकडाउन के कारण हम बात करें बच्चे और वडीलों की, तो सबसे ज्यादा मुश्किल ही उनको ही हुई थी, क्योंकि बच्चों का सबसे अमूल्य बचपन का जो समय है वो उन्होंने घुमाया था। इस लॉकडाउन के कारण उन्हें छुट्टियां मिली, तो उन्हें सबसे पहले तो उन्हें अच्छा लगने लगा कि छुट्टियां है तो चलो हम मजा करेंगे, लेकिन उनके मन में कई सारे सवाल थे कि ये 144 क्या है, ये लॉकडाउन क्या है, जनता कर्फ्यू क्या है। तो बच्चों को कोरोना के बारे में समझ देने के लिए पंचायत ने बच्चों के लिए कई सारी एक्टिविटियां की। तो इसमें कोरोना की समझ देने के लिए सबसे पहले तो एक रंगोली द्वारा बच्चों को समझ दी गई कि जिसमें कि किसी के साथ हाथ नहीं मिलाना है, और सोशल डिस्टेंस रखना है, कहीं भी थूकना नहीं है, और हर जगह पे सफाई रखनी है। ऐसे कोरोना महामारी से जो होने वाली आपदा, उन सब के बारे में उनको समझाया गया। अब उसके साथ साथ ही बच्चों को इस लॉकडाउन के कारण उनका शिक्षण भी छूट रहा था, तो इस शिक्षण के बारे में भी पंचायत ने कई सारी एक्टिविटियां की, जिसमें हर सैटरडे को एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, जिसमें हर सैटरडे को जो टीचर्स लोग हैं वो उन बच्चों का होमवर्क भेजते, उनमें भी होमवर्क बच्चों को हमें पहुंचाते, व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा पहुंचाते, और बच्चे भी उनके होमवर्क करके वापस देते हैं। उसके साथ साथ ही बच्चों कोरोना के बारे में ज्यादा समझे, उसके लिए उन्होंने चित्र स्पर्धा और निबंध स्पर्धा जैसी कई सारी स्पर्धाएं हमने की, जिसके कारण बच्चे कोरोना के बारे में क्या क्या जान रहे हैं वे खुद बताए, और उसका चित्र द्वारा भी उनको समझ है। इसके साथ साथ ही माटी काम हो, पेड़ों को पानी देना हो, ऐसी कई सारी एक्टिविटियां की गई। उसके साथ साथ ही ट्रेडिशनल कार्य, जैसे कि वैसे तो बच्चों के पास स्कूल जाते तब टाइम नहीं होता, लेकिन अभी जो टाइम है वो उनके लिए एकदम फ्री है, तो वो अपने माता पिता के साथ रहकर कैसे टाइम गुजार सके। तो ये पंचायत ने सोचा कि उनके माता पिता जो कार्य कर रहे हैं वो बच्चों को इस फ्री टाइम में उन्हें सिखाया जाए। तो जिन परिवारों में भरत काम होता है, बांधड़ी काम होता है, हमारे गांव में कोपर बेल का भी काम होता है, तो वे सभी अपने बच्चों में ये कलाएं कैसे विकसाए, इसका काम भी पंचायत द्वारा सभी परिवारों को आह्वान किया गया। संगीत प्रेमी जो बच्चे हैं उनको
एक फलिये में मोहल्ले में एक अगर संगीत का काम कर रहा है तो उनके फलिये के 3-4 लोग हैं, 3-4 बच्चों को संगीत के सिखाए, जैसे कि हारमोनियम हो, तबला वादन, ये सभी बच्चों को सिखाए, तो ट्रेडिशनल सभी जो कला है वो बच्चों में विकसित हो। ऐसे ही ई लर्निंग, जैसे कि जिनके पास कंप्यूटर हो और मोबाइल फोन द्वारा भी बच्चे सीखे। साथ ही साथ स्वास्थ्य भी जरूरी है, तो स्वास्थ्य के लिए बच्चे अपना निरंतर योग करे, ये भी पंचायत द्वारा सभी परिवारों को आह्वान किया गया। तो ये सभी चाइल्ड फ्रेंडली एक्टिविटी पंचायत द्वारा की गई। उसके साथ साथ ही जो बच्चियां हैं वो कुकिंग के बारे में सीखे। गांव में जो ट्रेडिशनल जैसे कि अनाज साफ करना है, रसोई बनाना है, ये सब अभी इस फ्री टाइम में अपने माता पिता से सीखे। इन सब का आह्वान पंचायत द्वारा किया गया। अभी मैनेजमेंट सदस्य होने के नाते सबसे पहले हमारे सरपंच जी ने बताया कि अनाउंसमेंट, तो जगह जगह नोटिस बोर्ड और पोस्टर द्वारा पूरे गांव में अनाउंसमेंट भी की गई और उसके साथ साथ ही पूरे गांव को सैनिटाइज किया गया। और सस्ते अनाज की दुकान पे ज्यादातर महिलाएं ही आती है अनाज लेने के लिए, तो महिलाएं वहां पे आती है, वहां पे उनको सबको सोशल डिस्टेंस 2 गज की दूरी बनाए रखे और साथ साथ से अपने हाथों को कैसे सैनिटाइज किया जाए वो उनको सिखाया गया। हैंड वॉश के जो 12 स्टेप है वो भी वहां पे उनको सिखाया जाए और घर पे जाके वो अपने बच्चों को सिखाए, ऐसी भी उनको सूचनाएं दी गई। उसके साथ साथ ही बच्चों के लिए मिड डे मील के अंतर्गत जो अनाज मिल रहा था, अनाज के टोकन मिल रहे थे, वो 2 दिन में 133 लड़के और 144 लड़कियों को वो 2 दिन के दिन में उनको वितरण किया गया। आशीष जी करेंगे ट्रांसलेट? आशीष जी? जी मैं करता हूँ। मुझे लगता है आप शेयर स्क्रीन बंद कर सकते हैं? नहीं या रहने दीजिए, अगला आपका है क्या चालू है प्रेजेंटेशन? ठीक है। Okay, again just a quick translation with what Bharti is saying. Bharti is on the disaster management committee and she was saying this is actually quite interesting. We don't know too many panchayats that have done this. They especially focused on how would children get through this 2 months of lockdown. Initially, of course, the children were delighted that there were holidays, but even that soon turned into boredom and not knowing what to do. So they did a whole series of activities oriented to children, creating, for instance, rangolis. Rangolis are traditional Indian designs using flowers or powders, artwork. So using that to create awareness about physical distancing and about COVID in general. They used online, like WhatsApp, since most people have cell phones these days. They use that for teachers to send lessons to the kids every Saturday, homework, so that they could also continue learning. They also did a lot of quizzes, for instance, on COVID, so that they could figure out what children knew about COVID, and more fun ways of actually learning. And I think most interesting is that they also got a lot of the elders to teach the children traditional skills like pottery, embroidery, music, copper bell. This village is very famous for copper bell craft work, clay molding, yoga, cooking, traditional technologies relating to food and others. They used as much of the e-learning as possible for those who have cell phones or computers, and also participation of the children in various kinds of physical activities. Then where there are provision stores, where mostly women come to buy provisions, food grains, etc., how to maintain physical distance and other safety precautions, hand washing, etc., were also taught to everybody who was coming for shopping for provisions. Thank you. Okay, next please. शुरुआती दिनों में मेरी आवाज मिल रही है? ओके। शुरुआती दिनों में सबसे बड़ा इश्यू था कि ये वनरेबल लोगों को सोशल जस्टिस वैसे नॉर्मली दिनों में भी हो रहा है या क्या, ये भी शंका का एक सब्जेक्ट है। तब हम क्या ये सोशल जस्टिस ये पेंडेमिक में कर पाएंगे क्या? तो ऐसे लोगों को जो है आइडेंटिफाई करना, ऐसे फैमिली को आइडेंटिफाई करना कि जो
वयस्क हैं, जो स्पेशल एबल्ड हैं या फिर विडो हैं, तो इन लोगों को ये सारी चीज़ें मिल पाएंगी, या नीडी पर्सन हैं उनको ये जो शुरुआती दिनों में उनको खाना या ये चीज़ें मिल पाएंगी या कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमने अप्रोच किया। गवर्नमेंट की स्कीम भी चल रही थी वहाँ पर, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वहाँ पर, तो ये लोगों को फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो कुछ खाना देना था वहाँ पर भी अरेंजमेंट करना था पंचायत को। और ऐसे बहुत सारे फैमिली थे कि शुरुआती दिनों में उनको पीडीएस से नहीं मिल सकता ऐसा फूड, उन लोगों को भी फूड प्रोवाइड करवाना पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो डोनर को है वो आइडेंटिफाई करके वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है लोगों की वो समझाकर 87 ऐसे फैमिलीज थे जहाँ पर उनको जरूरत थी एक महीने का राशन, वहाँ पर उन लोगों को कैसे मिले वो चीजें देखना था। इस दौरान एक चीज ये भी थी कि इकोनॉमिक क्राइसिस में लोग जी रहे हैं, घर में ही हैं, बहुत बड़ा फैमिली है, एक ही रूम है, तो ऐसे इश्यू वैसे तो ज्यादा नहीं आए, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस के भी इश्यू सामने आए। तो वहाँ पर उस चीज को कैसे हैंडल करना है, पंचायत ने वहाँ पर जाकर वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। स्पेशल जो ऐसे लोग हैं जिनको मेडिसिन की आवश्यकता है या नेसेसरी चीज़ों की आवश्यकता, वैसे छाया ने बताया कि जो क्वारंटीन हुए हैं उन फैमिली को जीवन जरूरी चीज वस्तुएं कैसे पहुंचाना है, तो ये सारी चीज़ें पंचायत ने वहाँ पर की थी। इस दौरान सबसे बड़ी चैलेंजेस जो हमारे सामने थी वो रूरल इकोनॉमी का था कि भाई ग्रामीण अर्थव्यवस्था को वापस मेन स्ट्रीम में लाना है, तो 20-22 दिन के बाद ये सारी चीजें करनी जरूरी थी। तो MGNREGS जो था वो सबसे बड़ा सोर्स था, सबसे महत्वपूर्ण ये चीज थी कि वहां पर हमें लोगों को जो है डिमांड करके लोगों को काम देना था। तो 126 ऐसे फैमिलीज थे जिनको हमें ये MGNREGS से ये रोजगारी देने थी। लेकिन नॉर्मल रूप से जो MGNREGS चल रहा है उससे अलग था, तो लोगों के बिहेवियर में चेंज लाना था, लोगों की समझ डेवलप करनी थी, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, हैंड वॉश की बात है या फिर मास्क लगाना है, ये सारी चीजें लोगों को समझाकर, इवन ये जो जितने भी लेबर्स हैं वो उनका थर्मल स्कैनिंग हो, उनको कोई सर्दी या बुखार या और कोई कोरोना रिलेटेड जो लक्षण हैं वो दिख रहे हैं या नहीं वो देखना था। तो हेल्थ टीम का सपोर्ट लेकर MGNREGA के जितने भी लेबर्स हैं उनको हमने ये काम स्टार्ट करवाने का किया। इसके दौरान सबसे बड़ी जो चीज थी नेक्स्ट वो था मिल्क जो है उसका इश्यू था, क्योंकि हम मैंने पहले भी बताया कि उमरिया जो है वो मिल्क प्रोड्यूसर या जो एनिमल हस्बेंड्री का व्यवसाय करने वाले लोग हैं, तो उनका दूध एक दिन से ज्यादा कभी आप रख नहीं सकते हो। तो इस दिशा में सिटी में जाने की 144 के तहत बंद हो गया, तो लोग कैसे जाएंगे वहां पर सिटी में, या सुरेश जी आपका माइक म्यूट हो गया है। अब मिल रही आवाज मिल रही है? हाँ जी मिल रही है, पर आपको ओके थोड़ा वेल, सा रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि आपका कुछ सेकेंड्स के लिए आवाज चला गया था। हाँ ओके वेल, तो अब ये जो है एक मिनट, थोड़ा टेक्निकल इश्यू आ रहा है। वेल तो जो मिल्क प्रोड्यूसर थे या जो ये फार्मर्स हैं उनका जो प्रोडक्ट थी वो मार्केट तक पहुंचाने का काम सबसे बड़ा इश्यू था। तो कोऑर्डिनेशन किया डेयरी से, और पूरा दूध जो है वो डेयरी में कैसे जाए और उनकी जो इनकम है वो कैसे कंटिन्यू रहे, इस दिशा में हमने काम किया। सबसे तकलीफ थी कि फार्मर्स के जो हैं वेजिटेबल्स हैं वो खराब हो रहे थे, फ्रूट की सीजन थी वहाँ पर, पोमोग्रेनेट है, मैंगोज हैं और जो है वाटरमेलन है, तो ये खराब हो रहे थे। इवन कॉटन और वेट या कैस्टर की प्रोडक्ट थी वो खेतों में पड़ी थी, तो इनको कैसे मार्केट तक पहुंचाना है और ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है। तो ये जो है APMC से संकलन करके ये सारी चीजों को सॉल्व करने का प्रयास किया है। देखते इस तरफ, तो इस दौरान हमने जो है पंचायतों में ये एक प्रयास किया कि पॉसिबल हो तब ये इन लोगों को जो है रोजगारी भी मिल पाए।
सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो या सबसे महत्वपूर्ण चीज थी वो अवेयरनेस की थी। हम ये चीजों को 4 हिस्सों में बांट दिया था। पहला काम जो था वो अवेयरनेस का था, लोगों को अवेयर करना था और कैसे इसके प्रिकॉशंस लेने हैं वो था। गवर्नमेंट दूसरा जो पार्ट था वो स्क्रीन को वो था पब्लिक हेल्थ का या गवर्नमेंट स्कीम जितनी थी उनको अप्लाई कैसे करना है। तीसरा जो था वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो डोनर की है, पंचायत की है या लोगों की है। मतलब जो हुनरिया के नागरिक हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें गवर्नमेंट के जितने भी रेगुलेशन या ऑर्डिनेंस या अनाउंसमेंट हो रही है उसका फॉलो करना है। बाद चौथी जो चीज थी वो थी फ्यूचर प्लान। तो क्वारंटीन सेंटर की बात हो रही थी, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर कैसे बनाने हैं, वहां पर वेल ट्रेन स्टाफ को कैसे वो करना है, घर से दूर एक घर, वो घर हमारे घर जैसा है या जेल जैसा है वो भी देखना था। क्योंकि कच्छ डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो बहुत सारे लोग जो हमारे भाई महाराष्ट्र में थे वो जो है मुंबई से होकर वापस घर आ रहे हैं, तो उनको 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करना है, तो वो सारी जिम्मेदारी पंचायतों को दी गई है। तो पंचायतों क्या इस इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के लिए रेडी हैं, प्रिपेयर हैं या नहीं हैं। इसके लिए घर में जो फैसिलिटी होनी चाहिए, ठंडा और पीने का शुद्ध पानी मिल रहा है या नहीं, पंखा है या नहीं, सैनिटेशन और टॉयलेट की व्यवस्था है या नहीं, महिलाओं के लिए अलग से क्वारंटीन सेंटर के लिए रूम है या नहीं, इवन जेंडर रिस्पॉन्सिव या जेंडर सेंसिटिव क्वारंटीन सेंटर की बात हो, चाइल्ड फ्रेंडली क्वारंटीन सेंटर की बात हो, ये सब हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा हम आत्मनिर्भरता की भी बातें बहुत हो रही थी। तो एक गांव में लोग जो है आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे, बाहर से आने वाले लोग यहाँ पर व्यवसाय कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी हमने पूरा डेटा निकाला कि एक गांव में कौन सी चीजें ज्यादा कंजप्ट हो रही है और क्या चीजें हमें जो है हमारे गांव में ही प्रोड्यूस या प्रोडक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम ऐसी चीजें हैं जो हमारा गांव का पैसा मार्केट तक जा रहा है या मल्टीनेशनल कंपनियां ले जा रही हैं, तो उसको गांव में कैसे हम रख पाएंगे। इस दिशा में भी हमने क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का गोल नंबर 12 जो है रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन की भी बात हम इस दिशा में देख रहे हैं। और हाइजीन का सब्जेक्ट जो है वो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। हम सब इस पेंडेमिक को लॉ एंड ऑर्डर का सब्जेक्ट मान रहे हैं। अभी तक जो है हमारे एसपी साहब या और कोई आईजी हैं वो बातें करते हैं कि भाई आपको ये रखना है, लेकिन ये सब्जेक्ट लॉ एंड ऑर्डर से भी जो है वो महामारी का है, मतलब हेल्थ का सब्जेक्ट है। तो हेल्थ के लिए लोगों को कैसे अवेयर किया जाए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। मैं आपके सामने एक वीडियो शेयर करना चाहूंगा जो 1 मिनट का है, जिसमें हमने रोज की कमाने वाले लोगों की जिनकी आय बंद हो गई थी उनको पूरा माहौल देने का प्रयास हमने किया है। वो वीडियो में साथी को बोलूंगा कि वो प्ले करे ताकि सुरेश भाई 1 मिनट अभी तक जितना बोला आपने ट्रांसलेट कर लूँ ताकि लोगों को समझ भी आएगा कि आप वीडियो क्या दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। Okay, so again to do a quick translation of what Suresh Bhai has said beyond the slides also, because he said some very important things after the slides were finished. Firstly, that they identified 87 vulnerable families in the village. That included those with elders, widows, or differently abled, physically challenged people, etc., who may not have been able to provide for themselves during the lockdown. So they were actually provided house-to-house PDS, that is basic food grains and things like that. They also used the Food Security Act to enable to actually get food supplies from the government, which is accountable to people where there is starvation or where there isn't enough food grains. They also dealt with issues of domestic violence. This is also something we know across the world has increased during the lockdown. And there were a few cases of domestic violence in the village with the panchayat dealt with, they intervened. One of the biggest, or probably the biggest crisis that is being faced in villages all across India is with regard to the economy, the loss of livelihoods and so on. So they gave a lot of priority to continue the work of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, which guarantees 100 days minimum of labor to everybody who is below the poverty line. So they ensured that that was continuing, but they made sure that it was done in a way that was
COVID friendly, COVID secure, as in physical distancing and so on. They also managed to make sure that milk producers and farmers, especially those with perishable items like vegetables and fruits, were able to reach the market. This is another huge problem all over India, where farmers are not getting the livelihoods, or milk producers are not getting livelihoods because they simply can't reach their usual markets. They managed to make sure that that was happening. He also then said that there were 4 main points in the response. One, awareness about COVID and safety measures. Second, the application of government schemes that are so important, both for COVID, but also in general, like the National Rural Employment Guarantee Scheme. Third, the responsibility of the citizens of Kunaria and or donors to Kunaria themselves in terms of not just COVID, but also responsibility towards each other. I think he forgot to mention this, but part of the donations for the needy families in the village were given by those who had the resources to make those donations. So they were actually creating this kind of responsibility, atmosphere of responsibility in the village itself. And the fourth major thing was this beginning to discuss future actions, such as, for instance, if something like this happens again, can there be a quarantine center or isolation centers which are dignified, which are not like jails, which are gender responsive, which are child friendly, and have all the basic provisions. Also to make sure that every household has all the basic things like adequate water facilities, energy, and so on and so forth. Then beyond that, they're also beginning to talk about self-reliance. How does the panchayat become much more self-sufficient and self-reliant, especially for basic needs, so that they don't have to depend on the outside world for basic needs? And for instance, why pay outside corporations like multinational corporations for things that they need basically? सुरेश भाई आपने शायद कहा नहीं, लेकिन even things like साबुन वगैरह हो सकता है आप शायद उसकी भी, maybe they're also talking about even things like soap or basic household needs. Why buy them from corporations when we can make them in our own villages? So that's a discussion they're having. They're very actively discussing sustainable development goal number 12, which is about sustainable consumption and production. I wish in our cities we would also be talking about that, not just you in villages. You already have a low consumption rate, but anyway, so that's quite inspiring. And finally, talking about health and hygiene, and to assert that COVID is not as much a law and order problem, which is what the police and so on are saying, as it is a basic health and hygiene and social responsibility issue. So they're trying to create awareness and discussing these things. And he wants to show us a very short 1-minute video clip on some of these issues, and then we can move to discussion. जी सुरेश भाई. Yes, बिल्कुल वीडियो प्ले कर रहे हैं. वॉइस आपको सुरेश भाई, उसमें शेयर स्क्रीन करते समय म्यूजिक साउंड के लिए भी क्लिक करिएगा, वो नहीं जी हाँ बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं. काम बंद करके वापस करेंगे. प्ले कर. ओके, तो
एक्चुअली ये जो हमने प्रयास किया है कि हमें जितने भी MGNREGA के लेबर हैं उनको ये सारी फैसिलिटीज काम के जगह पर मिले, मतलब स्पेशल ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो बताया गया था गवर्नमेंट की ओर से कि ये चीज़ें नेसेसरी होनी चाहिए काम की जगह पर, तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर प्रोवाइड की है। पीने का ठंडा पानी हो, थर्मल स्कैनिंग की बात हो, या फिर छाँव में काम कर सकें लोग, इसके लिए ये व्यवस्थाएं हमने की है। आशीष जी वैसे बता रहे थे कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन और प्रोडक्शन के बारे में हमने पूरा सर्वे किया है कि गांव में बहुत सी ऐसी चीजें जो बाहर से आ रही है और पैसा लेकर जा रही है, वो गांव में ही कैसे हम प्रोड्यूस कर पाए, या प्रोडक्ट उसकी NRLM के तहत या ऐसे छोटे गृह उद्योग बनाकर कैसे हम तैयार करें, उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के करीब करीब 13 गोल पर इस पंचायत ने जो है वो काम करने का स्टार्ट कर दिया है और काम शुरू किया है। आशीष जी। जी शुक्रिया. So this film that he showed was a brief glimpse at how the Rural Employment Guarantee Scheme workers were treated, so that they continued working, were able to get wages. They were all given proper shade facilities, proper water facilities, continuous health surveys like thermal scanning, hand washing facilities, and so on. These are part of guidelines that have been issued, and they were trying to make sure that all these guidelines were being followed, and doing this in coordination with the district and state agencies relevant for. Also, that they have done a full survey or are doing a full survey of the needs of the village, so that over time they can make sure that as many of those needs are produced within the village itself, rather than being dependent on buying it from outside or getting it from outside. They're also working now on 13 of the Sustainable Development Goals. Thank you. Srishti, over to you. ठीक है, तो सुरेश जी, हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमने सोचा था कि हम ब्रीफली ज़रा वो जो एक ऑल्टरनेटिव फ्रेमवर्क्स का ढांचा है उसके बारे में बात करेंगे। तो आशीष, आपको उसके बारे में कुछ बात करना है, या हम क्वेश्चंस पे जाएं और आप जैसा आप ठीक समझे, मैं कर लूं अभी या फिर बाद में भी कर सकते हैं? ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप संक्षिप्त में थोड़ी देर बात कर लेते हैं, एंड फिर हम क्वेश्चंस के लिए ओपन करेंगे। वैसे फॉर मोस्ट पीपल वी हैव टेकन डाउन देयर क्वेश्चंस, बट वी वुड अर्ज एंड request you, if you would like to ask your questions, let us know, and you can go ahead, unmute yourself and ask. So of course use the raise hand icon in the chat box which is mentioned. But Ashish, you can go ahead, and I will probably put that slide on the screen share. Yeah, so essentially, I'll do a bilingual also, English and Hindi. The slide that Srishti is going to show is something that emerges from the last 5-6 years of the whole Vikalp Sangam process that she described, which is to say, if we want to shift towards a society that is much more socially just, much more equitable, much more equal, much more ecologically sustainable, and so on, where everybody has dignified life and well-being is assured, then what are the kind of transformations that people are already trying out and or what are needed? So I'll do the whole thing in English first and then do it in Hindi. So this is a very brief representation of that. I don't know if whether everybody can see this properly or not, but essentially, like if you see what's happened in Konaria, partly they have moved towards a model of democracy in which at least some of the decisions are happening at the level of the village itself. Not everything happening by government departments or state departments, but by the village, at least as far as their basic everyday, day-to-day kind of activities are concerned. So we call that radical democracy, which is really power at the level of the people themselves. This is obviously not complete. It's a work in progress. Much more has to be done. But that's one very crucial part of this overall transformation. Secondly, if we hear Suresh Bhai
and the intent of the village to say that they want to move towards self-reliance, which means again economic democracy, which say that the production of the needs of people is in the hands of these people, in the hands of producers, and that producers also have some amount of self-reliance with regard to local exchanges, local production processes, the land, the seeds, the animal husbandry, other production facilities, and so on. So that's the, to some extent, the economic democracy part of it. There's many other elements to it, but I'm trying to make this brief. The third is, and this is, I think, one of the questions also somebody has asked, so maybe Suresh Bhai and Chaya Ben and Bharti Ben can respond to this, is the struggles for justice within the society itself. They already spoken about women's empowerment. And that's a huge issue across India where there's high levels of patriarchy and masculinity. But also there are caste issues, there are class issues, there are ethnicity issues. So Kunaria is trying to deal with some of them, as we heard, and we can ask them about other aspects like caste, which has so far not been mentioned. But that's the third element here, which is of social justice. The fourth element is culture and knowledge. As we heard, one of the most important activities they did, innovative activities they did in COVID was trying to convey from the elders who know traditional skills like music or pottery or crafts and so on, to convey those to children. So keeping alive a certain cultural identity and a certain cultural diversity. So everybody is not just going into one kind of homogeneous way of looking at the world. And finally, the environment. I think they didn't get into this much, but I do know that they have planted thousands of trees trying to regenerate or restore some of the ecological balance. They've also done watershed management in the village. So that's the fifth major element of protecting the environment, because without that, we're all dead anyway. And so we can look at Kunaria as a kind of a microcosm of some of these changes, not necessarily all of them. And I think the kind of discussions the village is having now is to try and be much more holistic and achieve this kind of much more holistic and rounded transformation. Also based on fundamental values. If you see what they've done with NREGS, for instance, it's based on a certain act of empathy and solidarity with laborers, with workers who have no other means of income. Otherwise, they could have simply left them saying, okay, for 2 months, you just sit at home and do nothing. Or if you see the way in which they're dealing with elders or physically challenged or pregnant women, there is a certain solidarity, a certain empathy, a certain love, a certain affection. So there are fundamental ethical principles that are involved in this, which make this transformation possible. And that's at the core of this flower of transformation, the values. संक्षिप्त में हिंदी में बता देता हूँ. तो ये जो कुनरिया का हमने उदाहरण सुना, हमने पिछले 5-6 साल में विकल्प संगम की प्रक्रिया में जो अलग अलग भारत में अलग अलग इस तरह की प्रक्रियाएं चल रही हैं, उनसे सीख के इस तरह का एक फूल बनाया है कि हम अगर बदलाव चाहते हैं, सामाजिक बदलाव चाहते हैं, जिसमें कि न्याय हो, जिसमें कि सततता हो, जिसमें कि पर्यावरण का भी बचाव हो, सबका फायदा हो, तो वो किस तरह के बदलाव हों. तो जैसे हमने कुनरिया का सुना कि पंचायत के सशक्तिकरण और ग्राम सभा की सशक्तिकरण से एक जो हम लोकतंत्र जिसे अदरवाइज कहते हैं कि हमने 5 साल में एक बार वोटिंग कर ली तो वो लोकतंत्र हुआ, नहीं. कुनरिया के लोग कह रहे हैं कि हमारे जो निर्णय हैं, जो हमारे जीवन पे प्रभाव देते हैं, उन निर्णय में हमारा भागीदारी होनी चाहिए, हमें इन निर्णय को लेना चाहिए. तो किस तरह से ग्राम सभा पंचायत को सशक्त बनाया जाए. तो एक वो मूलभूत लोकतंत्र, रेडिकल डेमोक्रेसी वाली बात हुई. दूसरा, जैसे उन्होंने बताया कि अभी भी और आगे चल के भी हम चाहेंगे कि कम से कम जो मूलभूत हमारी ज़रूरतें हैं, आर्थिक ज़रूरतें हैं, जो आजीविका है, वो हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ें. तो एक इकोनॉमिक या आर्थिक लोकतंत्र की भी बात आती है उसमें. तीसरा आयाम है सामाजिक न्याय, क्योंकि महिला और पुरुष के बीच के रिश्ते या अलग अलग वर्णों के रिश्ते, जातियों के रिश्ते, ये जो हमारी असमानता है, पहले से चलती आ रही है और नई असमानताएं भी हैं, उनको भी किस तरह से दूर किया जाए. कुनरिया का हमने सुना कि जैसे महिला सशक्तिकरण की काफ़ी बात आई. जातिवाद की बात शायद नहीं आई है, तो वो सवाल भी किसी ने उठाया है, तो सुरेश भाई, भारती बहन, छाया बहन हमें बताएंगे उसके बारे में. तो ये भी एक लड़ाई जो है समानता की तरफ, सामाजिक न्याय की तरफ, वो एक तीसरा आयाम हुआ. चौथा आयाम हुआ संस्कृति और ज्ञान का. तो ये बहुत अच्छा, मुझे तो कम से कम बहुत अच्छा लगा कि कोविड में एक बहुत बड़ा उन्होंने ये महत्वपूर्ण किया कि बच्चों को कैसे उनके बुजुर्ग जो लोग हैं वो हमारी जो पारंपरिक ज्ञान है, जिसमें कि हस्तकला का ज्ञान है या गीत का ज्ञान है, म्यूज़िक का ज्ञान है
या फिर पॉटरी उसका ज्ञान है, अलग अलग जो तरह के ज्ञान है उसको हम बच्चों की तरफ कैसे बढ़ाया जाए, ताकि बच्चे केवल ये ना समझे कि जो बाहर से आने वाला ज्ञान है, बाहर से आने वाली स्किल्स हैं, वो ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो किस तरह से सांस्कृतिक और ज्ञान की विविधता को भी हम बढ़ाए रखें। और पांचवा आयाम है पर्यावरण का, जिसके बारे में शायद आगे और कुछ लोग बताएंगे। मुझे मालूम है कि वहाँ पे पानी का बहुत अच्छा काम हुआ है, पेड़ लगाने का बहुत अच्छा काम हुआ है, तो पर्यावरण को भी किस तरह से हम लोग बचा पाए, क्योंकि उसके बिना तो हम लोग सब खत्म ही हो जाएंगे। और इन सब के बीच में जो मूल्यों का, नैतिक मूल्यों की बात है, आध्यात्मिक मूल्यों की बात है, वो उसके बारे में भी बदलाव किस तरह से लाया जाए, ताकि जैसे कि कोविड में जो वर्कर्स, जो श्रमिक नहीं तो 2 महीना बिना पैसे के होते, उनको भी किस तरह से उन्होंने सतत काम करने के लिए सुविधाएं की, और साथ में जैसे कि गर्भवती महिला है या फिर कोई बुजुर्ग लोग हैं जो नहीं जा पाएंगे अपनी दवाई लेने के लिए, उनकी तरफ भी किस तरह से किया। तो एक प्यार का, एक संबंध का, एक सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जिम्मेदारी की जो बात है, वो एक तरह से एक नैतिक मूल्य हुए जो एक इस पूरे बदलाव के दृश्य में जो बिल्कुल बिंदु के केंद्र हैं, वो भी हम इस उदाहरण से देखते हैं। खैर, इसके बारे में तो बातें बहुत और हो सकती हैं, लेकिन अभी मैं इसको बंद करता हूँ और फिर चर्चा हम शुरू करते हैं। थैंक यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी, छाया और भारती। बहुत ही अच्छे से आपने हमें एक्सप्लेन किया और बहुत ही इंस्पायरिंग काम कर रहे हैं आप लोग। तो बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हम थोड़े क्वेश्चंस लेना चाहेंगे, हमारे पास आधे घंटा है अभी। तो हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी क्वेश्चंस आ गए हैं। I was just thanking Suresh, Chaya and Bharti for taking out time and joining us. And now we are open for questions, and we have around 22 minutes left. So I hope that we will be able to cover most of the questions. I think Vijeta asked her first question. Vijeta, would you like to go ahead, ask, or I mean, you're free to unmute yourself and ask your question yourself. Else, I can do it for you. Shrishti, hi Vijeta here. Yeah. It would be helpful if you can ask the question because I'm not in that space where I can ask the question. Sure, no problem. तो सुरेश जी, विजेता का क्वेश्चन ये था कि पब्लिक पार्टिसिपेशन के समय कास्ट का क्या इम्पैक्ट रहा है, क्या उसकी वजह से पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्ट हुआ है, और उस पर कैसे काम कर सकते हैं ताकि इस गैप को कम किया जा सके। सृष्टि जी, इनका सवाल मैंने शायद चैट बॉक्स में भी था और ये देखा था कि इस दिशा में बात करनी है। बहुत सारा काम हुआ है इस दिशा में, जातिवाद के और समाज की जहाँ पर तक बात है, तो हम हर एक डिसीजन की बात आ रही है तो प्लान प्रोसेस से लेकर उसका इम्प्लीमेंटेशन तक जो है, हर एक वार्ड, हर एक वार्ड के साथ साथ फोकस ग्रुप हो, वो फिर महिलाओं का ग्रुप हो, युवाओं का ग्रुप हो, पर्टिकुलर धर्म, जाति या समुदाय का ग्रुप हो, हर एक के साथ पंचायत की पूरी कमेटी जो है, जीपीडीपी जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के लिए एक कमेटी है, उस कमेटी में हर एक समुदाय से, हर एक वार्ड से रिप्रेजेंटेशन रहता है और सब साथ बैठकर पूरा प्लान करते हैं। और प्लानिंग के दौरान जो है वो सिर्फ फॉर्मेलिटीज नहीं होती है, उस वार्ड में जाकर उस वार्ड की व्यक्तिगत क्या समस्याएं हैं या सार्वजनिक क्या समस्याएं हैं वो सामने लाते हैं। वार्ड में भी उसकी चर्चा होती है, देन वो चर्चाएं जो है हम ग्राम सभा में भी लाते हैं। तो ये वो फिर प्लानिंग के स्वरूप में हो या उसके इम्प्लीमेंटेशन के स्वरूप में हो, हर बार वो चीजें हम ध्यान में रखते हैं। और पार्टिसिपेशन में रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल नहीं हुआ है, इससे और पार्टिसिपेशन बढ़ा है। लोगों को वो विश्वास आया है कि पंचायत हमारे दिए हुए सुझाव पर काम कर रही है या हमारी बातें सुन रही है। सारे काम शायद हुए ना हुए, लेकिन जो प्रायोरिटी बेसिस पर जो काम लेने हैं वो ग्राम सभा डिसाइड करती है। और ग्राम सभा में अपने फोटोग्राफ में शायद देखा होगा, पूरा गांव बैठकर वो डिसीजन लेते हैं कि आने वाले साल के लिए हमारा ये प्लान है और उसमें प्रायोरिटी ये है। तो
पब्लिक पार्टिसिपेशन का बहुत ही एडवांटेज है, हमें मिलता है। सुरेश भाई, मैं जल्दी से थोड़ा सा और पूछ लूँ, क्योंकि पब्लिक पार्टिसिपेशन, ग्राम सभा वगैरह तो बढ़िया है, लेकिन कई बार क्या होता है कि पारंपरिक असमानताओं की वजह से कुछ लोग नहीं बोल पाते हैं। अगर चाहे जातिवाद की वजह से हो या पितृवाद की वजह से, जो है, या तो महिलाएं नहीं बोल पाती हैं, या जिन जातियों को कुचला गया है पहले, दलित वगैरह, वो नहीं बोल पाते हैं। अगर ऐसा माहौल है तो इसके लिए आपने क्या किया है? और उसके बाद एक्चुअली आई विल ट्रांसलेट बोथ हिज रिस्पॉन्सेज आफ्टर ही फिनिशेस। एक्चुअली हमने जो है वो एक सजेशन बॉक्स रखा हुआ है, जिस पर कोई भी आकर अपनी बात है वो बॉक्स में रखेगा कि भाई अपने कुछ डिमांड है या इश्यूज है, वो उस सजेशन बॉक्स में या सूचन बॉक्स में रखेगा। इसके अलावा हमने जो टेक्नोलॉजी है उसका भी उपयोग किया है। हम जैसे गूगल फॉर्म है, उसमें हम पूछते हैं कि भाई पंचायत से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या आपकी डिमांड है, तो वहां पर हम ये सारी चीजें गोपनीय रखते हैं। और बहुत सारे युवा जो हैं अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी पंचायत को सजेशन देने लगे हैं। वो फिर अगर हम ये इतना जो है गोपनीय रखते हैं ये सारी चीजें, तो लोग नहीं बोलने की कोई सवाल ही सामने नहीं आया आज तक। और पारंपरिक रूप से जो कुछ इश्यू हैं वो पर्टिकुलर हमारे एरिया में अभी तक वो देखने को नहीं मिले हैं। तो पिछड़ी जाति के या दलित समुदाय के जो कुछ इश्यू हैं वो नहीं है। जो इश्यू हम समझ रहे हैं, हम जान रहे हैं और कई प्रदेशों में हो रहे हैं, वो इश्यू कुनरिया पंचायत के मुकाबले, औरों के मुकाबले कुनरिया में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। Okay, just a quick translation. So the question was about issues like casteism or others who have been marginalized in the past, and how is their participation ensured. So what Suresh Bhai shared was that there are, apart from the general Gram Sabha meetings and so on, the Panchayat also organizes focused group discussions with every kind of community in the Panchayat, different communities, the women, men, etc. And also in each ward, and then there is a general Gram Sabha. And they also, because of the fact that the Panchayat has been very proactive, there is a much higher level of participation by people from across the 3 villages in the Panchayat. And also that apart from the general meetings, they also have ways by which people can reach the Panchayat directly without everybody getting to know. If somebody has a complaint or an issue, there is a suggestion box, and there's also an online Google form and other ways by which people can tell the Panchayat, and the Panchayat keeps that confidential so that people are not threatened or whatever. So through all of this, they've been able to make sure that there is maximum participation. And also he says that the kind of casteism and other issues that other parts of India has faced, which he knows about, have not been faced in the Kunaria Panchayat. आशीष जी, और एक साथ इसके साथ ऐसे ही परिप्रेक्ष्य में जोड़ना चाहूंगा कि हम जिस जगह पर रह रहे हैं वो जातिवाद का वो विषय इसीलिए भी सामने नहीं आ रहा है क्योंकि लोगों की खान पान, लोगों का ड्रेस कोड, ये सब एक है। वो फिर दलित समुदाय से हैं, आहिर समुदाय से हैं, या कारीगर समुदाय से हैं, या मिस्त्री समुदाय से हैं, सबका ड्रेस कोड सेम है। ड्रेस कोड सेम है, खान पान सेम है, रहनी कहनी सेम है। तो वहां पर वो डिफरेंसेस या डिस्टेंस रखने की बात आज तक आई नहीं है। और पर्टिकुलर पंचायत की बात करें तो ये सारी चीजें हम फोकस ग्रुप के साथ बैठकर करते हैं, तो ये इश्यू पर्टिकुलर नहीं आ रहा है। Okay, he added to this saying that culturally, the kind of practices that are there in the different castes and sub-communities in the panchayat are fairly similar. The food, the housing, the clothing, etc. So that kind of distancing that sometimes happens because of different practices is not prevalent here. बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी। जस्ट टू सेव टाइम आई विल मैं ही आपको क्वेश्चंस बता देती हूँ बिकॉज हमें मल्टीपल ट्रांसलेशंस करने पड़े हैं। सो I'll just tell you the next question. So next question नीमा का है। वो पूछ रहे हैं, so I understand that the board met sometime early in the COVID times and planned for this. How did they manage to generate financial resources for this? तो सुरेश जी, इसका सवाल यही है कि वो ऐसा समझ रहे कि बोर्ड कोविड समस्या के पहले मिला होगा और इसके बारे में प्लानिंग किया होगा। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये सारी प्रक्रियाओं के बारे में जिनके बारे में आपने डिस्क्राइब किया,
वो आपने कैसे जनरेट किया, कैसे उनको इकट्ठा किया? एक्चुअली पंचायतों की बात है तो 14 फाइनेंस कमीशन से जो कुछ पैसे आ रहे थे वो तो थे ही थे, लेकिन इसके बाद मैंने बताया था कि अवेयरनेस का जो काम चला वहाँ पर वॉलेंटियर ले लोग जुड़े, और उसमें तो कुछ खास वो कुछ जरूरतें नहीं थी। हाँ बिल्कुल, वहाँ पर हमने अपील की डोनर से, तो बहुत सारे डोनर सामने आए और इस महामारी की सेंसिटिविटी को डोनर के सामने रखा। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो स्वैच्छिक संस्थाओं से भी हैं, गांव के लोग भी हैं जिनके पास कुछ है और वो दे सकते हैं, ऐसे लोगों से अप्रोच किया। तो 7 टन से ज्यादा, आपको मैं बता दूं, 7 टन से ज्यादा अनाज है वो मार्जिनाइज लोगों को या जरूरतमंद लोगों को इस दौरान जो है वो पहुंचाया है। सृष्टि जी शुक्रिया। Just to translate that, the question was already in English. How are the financial resources raised for this? So one is the regular funds that are supposed to come from the government to the panchayats. Those were used, plus donors both from outside and also well-to-do families within the village itself. As he had mentioned earlier, there's a certain sense of social responsibility that has been created within the village. So those who could afford to give money for those who could not afford food grains, etc. There was also internal donation taking place. And he mentioned that a total of 7 tons of food grain was contributed or put together for all those who needed it in this COVID period. हाँ शुक्रिया आशीष जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आलोक जी का है। फंड और बजट के मामले में ब्यूरोक्रेसी के साथ पंचायत का क्या अनुभव रहा है? इतना अच्छा भी नहीं, और जी बिल्कुल, जहाँ तक बात हो रही थी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की, तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन हर एक पंचायतों को सूचना दी कि, पर्टिकुलर मैं कच्छ डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, तो इस डिस्ट्रिक्ट में सभी पंचायतों को बोला गया कि जितने भी बाहर से लोग आ रहे हैं उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करना है। तो वो क्वारंटाइन करने के बाद जो फैसिलिटीज वहाँ पर देनी है, जैसे कि उनका खाने पीने का इंतजाम करना है, चाय नाश्ते का इंतजाम करना है, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो एक घर में नेचुरली चाहिए। हम घर से दूर एक घर की बात कर रहे हैं तो वो सारी फैसिलिटीज चाहिए, वो फैसिलिटीज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं मिल पा रही थी, तो वहाँ पर जो है वो अच्छा अनुभव नहीं रहा है। और जहाँ तक बात है, वैसे नॉर्मल रूटीन में तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से कुछ फंड्स आ रहे हैं वो वैसे तो समय सर आ रहे हैं, तो इतना अच्छा भी नहीं और शिकायत करने लायक भी नहीं, ऐसा आ रहा है। Okay, the question was about the experience with the bureaucracy with regard to funds and budgets. Suresh Bhai said that the experience was not great, but it was not too bad either. The funds that should have been coming, some came, some delayed, etc., but nothing that created a serious problem. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अनीता का है, जो पूछ रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस इज अ बिग इशू, तो एंड इट्स अ इशू नॉट जस्ट इन आवर कंट्री, एक्चुअली इट्स अक्रॉस द वर्ल्ड. सो कैन यू एक्सप्लेन how you got to know about it and what measures you took to handle it? तो डोमेस्टिक वायलेंस के इशू के लिए आपको उसके बारे में कैसे पता चला और आपने क्या क्या कदम उठाए उसको टैकल करने के लिए? सुरेश भाई, अगर भारती या छाया बहन जवाब देना चाहें। बिल्कुल बिल्कुल, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा માટે मैं बात करना चाहूँ। भारती, हमारे गांव में एक ऐसी समिति बनाई गई है कि हर एक मोहल्ले में एक एक लड़की को मेंबर बनाया गया है। तो अगर महिलाएं हैं वो पंचायत तक जाके अपना दुख जो है, यानी कि वो जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है वो नहीं बता सकती, तो वो उस गांव के जो उस के मोहल्ले की लड़की को बता दे कि उसके घर में ये प्रॉब्लम है, तो वो पंचायत में उसका क्वेश्चन जाता है और वहां से उनका सॉल्यूशन भी मिलता है।
Okay, so there is a special committee that has been set up in the village for the issue of domestic violence. So anybody who has a problem or an issue and cannot complain to the Gram Sabha or not in a more public forum, they're able to go to this committee. आसिफ जी, मैं जोड़ना चाहूँगा। हाँ जी, बोलिए। एक्चुअली जो है हम ये जेंडर सेंसिटिव ऑडिट भी करते हैं। वैसे नॉर्मली सोशल ऑडिट हो रहा है, वहाँ पर फाइनेंशियल ऑडिट भी हो रहा है, गवर्नेंस ऑडिट भी हम ग्राम पंचायत में कर रहे हैं। वैसे जेंडर ऑडिट हम करते हैं और उसमें ये सारी चीजें भारती ने जो बताया कि बहनों के साथ बैठकर हम ये चीजें आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि भाई कौन सा एरिया सेफ है, कौन से समय में उनको बहनों को तकलीफ हो रही है, कौन से समय में आने जाने में प्रॉब्लम है, कौन से घर में थोड़ा बहुत भी डोमेस्टिक वायलेंस का इश्यू है। तो ये ओवरऑल हम 3 साल में ये जो है जेंडर सेंसिटिव ऑडिट जो है वो तो कर ही रहे हैं। इसके साथ साथ पर्टिकुलर ये सवाल में ही जुड़ा हुआ था, आपने कैसे किया, तो बिल्कुल आसपास के लोग भी हैं वो पंचायत को जानकारी देते हैं कि यहाँ पर थोड़े बहुत इश्यू आ रहे हैं। तो पंचायत के लोग न सिर्फ पंचायत के 11 मेंबर्स की समिति, सरपंच और सचिव तक सीमित न रहते हुए सभी लोग पंचायत के मेंबर हैं और वो लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर यहाँ पर कुछ ऐसा डोमेस्टिक वायलेंस जैसा कुछ दिख रहा है तो उस दिशा में भी काम किया जाए। तो ये काम हम कर रहे हैं। Okay, so apart from what Bharti Ben said, Suresh Bhai also added that they have been doing different kinds of audits in the village and like governance audit, etc. But one of them is also a gender sensitivity audit in which women in particular are asked which areas of the village may not be safe. Is there any problem with them going back and forth in the village or outside and inside? And are there households that... તમારું મ્યુટ કરો માઇક. Are there any, if anybody has knowledge of households in which there is a issue of domestic violence, even neighbors, for instance, if they know about it, are encouraged to report so that the committee or the panchayat can take action. Next question विजय जी का है। वो पूछ रहे हैं, सुरेश जी, since you are part of the system, what challenges do you think other village panchayats may face to replicate your initiatives in terms of policies, funds and other resources? So many people now moving back to their villages. We definitely see the need of focusing on rural economy and self-sufficiency. तो ये पूछ रहे हैं कि आप क्योंकि पंचायत सरपंच हैं, तो किस तरीके की समस्याएं या किस तरीके के चैलेंजेस आपको लगता है कि दूसरी पंचायत फेस करेंगे अगर वो आप जैसी प्रक्रियाओं को अपने पंचायत में लाने की कोशिश करते हैं, इन टर्म्स ऑफ कि पॉलिसीज का इस्तेमाल कैसे हो सकता है, या पॉलिसीज नहीं है तो उस समस्या से कैसे निपटा जा सकता है, फंड्स और रिसोर्सेज से रिलेटेड। और क्योंकि वो ऐड कर रहे हैं क्योंकि अभी इस समय जब बहुत सारे लोग गांव की तरफ पलायन कर वापस जा रहे हैं, तो एक गांव की अर्थव्यवस्था और स्वावलंबन की जो बात है उसके बारे में सोचना और उस पर फोकस करना जरूरी हो गया है। बिल्कुल शुरुआती दिनों में इसमें मैं अगर जोड़ दूं, क्योंकि आप पूरे पंचायत एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं, तो बाकी पंचायत में भी आपसे सीख के इस तरह का काम हो रहा है क्या, और उसमें क्या चुनौतियां? एक्चुअली जो पंचायत लेवल पर है वो बहुत सारी पंचायतों में आज भी डिसीजन प्रोसेस है वो सेंट्रली है। मतलब डिसेंट्रलाइज की हम बात करें, वहां पर प्लानिंग की बात हो या इम्प्लीमेंटेशन की बात हो, तो वो सेंट्रली पूरी ये है। गवर्नमेंट ऑफिस से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कोऑर्डिनेशन का भी बहुत बड़ा इश्यू आ रहा है। फंडिंग की भी अगर मैं बात करूं तो टायर्ड अनटायर्ड फंड की भी बहुत बड़े इश्यू है। पंचायतों को पूरे बांध कर रखा है कि भाई आपको ये पैसा यही यूज करना है, गाइडलाइन के तहत ही काम करना है, आपको ये करना नेसेसरी है लेकिन आप ये नहीं कर पाओगे, ये अगर आपको नहीं भी करना है तो आपको ये करोगे क्योंकि आपको इस काम के लिए फंड मिला है। तो ये चुनौतियां हैं शुरुआती दिनों में, हम मानते हैं। देन और दूसरा जो फंड आ रहा है वो एमपी से आ रहा है, एमएलए से आ रहा है, या डिस्ट्रिक्ट पंचायत का जो कुछ रिप्रेजेंटेटिव हैं
उनकी फंड आ रहा है। गुजरात की अगर मैं बात करूं तो આપણો તાલુકો વાઇબ્રન્ટ તાલુકો मतलब ब्लॉक लेवल पर एक प्लान हो रहा है, उसका भी फंड आ रहा है। तो वहां पर ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान को कंसिडर नहीं किया जा रहा है। पर्टिकुलर किसी गांव की क्या जरूरत है, क्या डिमांड है, वो नहीं पूछी जा रही है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जो भी है, जो एमएलए है या एमपी है या ब्लॉक लेवल पर जो कोई है, तो वो सोचेगा कि इस एरिया में ये देना है, वो दे देंगे। फिर वहाँ काम की जरूरत हो या ना हो तो भी ये हो रहा है। आशीष जी, आप जो बता रहे हैं वो हम अब ये कर रहे हैं ब्लॉक लेवल पर। ब्लॉक रिसोर्स ग्रुप लास्ट ईयर एनजीओ का सहयोग ले, आप जानते ही होंगे, सेतु से हमने सहयोग लेकर एक पूरा 10 तालुकाओं की बात है तो 2-3 एनजीओ के साथ जुड़कर ब्लॉक रिसोर्स ग्रुप बनाए और प्लान, हर एक ग्राम पंचायत का ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाएगा और उसके बाद जो गांव का प्लान है उस प्लान के मुताबिक ही जो फंड है, जो कुछ ग्रांट है वो रिलीज होगी। इस दिशा में काम हो रहा है और बहुत सारी पंचायतें हम साथ मिलकर देख रहे हैं और लर्न कर रहे हैं, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। 14 फाइनेंस कमीशन की बात हुई तो इसके अलावा भी जो कुछ फंड या ग्रांट्स हैं वो उसको कैसे हम अपने प्लान में लाएंगे, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान में, और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। इवन एमजीएनआरईजीए की जो कुछ ग्रांट्स हैं, जैसे कि लेबर का जो काम है उसको तो लेबर को मिल गया, इसके बाद मटेरियल वर्क का काम जो है वो मटेरियल के लिए भी 60-40 का रेशियो जो है उस हिसाब से अब हम जो है एपीओ को या जो डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी है वहां पर अप्रोच करके अब जिस गांव में जो कोई डिमांड है उस दिशा में काम कर रहे हैं। एक दो चीजें मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि कच्छ जो है वो वाटर स्कैरसिटी के लिए जाना जाता है, तो वाटर सिक्योरिटी प्लान कैसे बनेगा और उस दिशा में भी काम कर रहे हैं कि भाई हर एक पंचायत जो है वो 600-700 किलोमीटर दूर से पीने का पानी लाएगी, तो कैसे ये मुमकिन होगा। जीवन जरूरी चीज है पीने का पानी, तो वो पीने का पानी अपने ही सोर्सेस में हो या वो प्लान जो है वो कैसे बनेगा, उस दिशा में भी पंचायतें काम कर रही है। आपको पता भी हो, हमारी बात हुई थी उस दौरान की 62 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ कुनरिया गांव है, उसके 73 डिफंक्ट बोरवेल है, उस बोरवेल का मॉनिटरिंग हो रहा है कि हर 3 महीने उसका लेवल क्या है, उसकी वाटर क्वालिटी क्या है। तो फार्मर्स को भी ऐसे एडवाइस दी जा रही है कि आप पर्टिकुलर आप इस फार्म में ऐसी खेती करना है या कम पानी ले वैसी खेती करना है, माइक्रो इरिगेशन पर जाएंगे लोग, और उस दिशा में पंचायतें अब काम करने लगी है। पर्टिकुलर कुनरिया पंचायत ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। हेलो, धन्यवाद। So the question was about challenges faced by other panchayats and also the issue of villages, a lot of villagers going back. So how would the rural economy be revitalized? On the issue of challenges, what Suresh Bhai was saying that for most panchayats in that area, and maybe I would add for most panchayats in India, there is still a big problem of the centralization of power and funds in the hands of government departments. Even the funds that are meant for panchayats are often very tight. They are straight jacketed. The government department tells them what exactly you can use it for, whether it's relevant or not. So that's one big problem which they also faced initially, and they had to struggle through it. There are also other funds, such as the funds by members of parliament or the funds of the members of the legislative assembly or the district panchayat funds. And there's a program also in Gujarat called Apdo Taluka Vibrant Taluka, meaning our block, a vibrant block, or Taluka as it's called in Gujarat. But these funds are not necessarily focused on individual villages and their unique problems or their specific problems. They're much, and they're also very, especially the MP and the MLA funds are subject to very random choices by the members of parliament or the members of the legislative assembly. What they like and the villages and the places they like, they'll give the money, not necessarily where it's needed. But one of the things that they have done in association with Setu Abhiyan, and I think Dhawal Bhai and maybe others of the Setu Abhiyan are on the call, so maybe they can add here, is set up a block resource group in which all the panchayats of the block are able to get together and exchange experiences on making panchayat development plans, and then how to make sure that all the funds that are meant for the village
from all these different sources are put in a cohesive way, in a coherent way, into the plans that are made by the panchayats, and this includes the Rural Employment Guarantee Scheme and others. And finally, he mentioned also that they are making a water security plan for the area. Kutch is India's lowest rainfall area, very, very dry for those of you who don't know it. And so water is a very big issue. So they're making a plan on water self-sufficiency and water security. And one of the aspects of that is regular monitoring of every well, every bore well, and then advice to farmers if the borewell water is going down too much, then advice to farmers on how to use less water, how to optimize the use of water in their cropping practices. तो हमारा समय 5:30 बजे तक का था, तो हमारा समय तो ख़त्म हो गया है, स्केड्यूल्ड समय ख़त्म हो गया है, लेकिन हमारे पास 3 और सवाल हैं, तो इफ़ इट्स ओके तो हम वो 3 सवाल लेकर फिर इसको कंक्लूड करते हैं. So I was just saying that our time has concluded in terms of whatever we had scheduled for, but there are 3 more questions. So we'll take those 3 questions and then probably conclude this talk. And then I think it would take around probably 15 minutes or so to answer those questions. तो बिना देरी के सुरेश जी, भारती और छाया, एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि what is the attitude of the villagers who have returned back to the village? Do they anticipate going back or are they keen on remaining in the village? पर्सी ये सवाल पूछ रहे हैं कि लोगों का जो गांव वापस आ रहे हैं उनका एटीट्यूड क्या है, क्या वो सोच रहे हैं कि वो दोबारा शहरों में वापस जाएंगे या वो गांव में ही रहने की कोशिश कर रहे हैं. और उससे एक जुड़ा सवाल सुरेश जी और भारती और छाया ये भी है शायद कि किस तरीके से जो गांव की अर्थव्यवस्था है, जो गांव की इकोनॉमी है, कैसे वो आत्मनिर्भर बनाने के बारे में शायद आप लोग सोच रहे हैं या विचार कर रहे हैं. अगर आप उसके बारे में भी ऐड कर सके तो अच्छा होगा. आप देना चाहेंगे जवाब या मैं दे दूं? भारती? ओके. जो लोग शहरों से वापस आ रहे हैं, वो शहरों में गए क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनको रोजगारी नहीं मिल रही. ठीक है, तो अगर यहाँ पर उनको काम मिल रहा है तो वो वापस नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे. बहुत कम लोग हैं. 3 साल से हमने जो प्रयास किया है कि वो माइग्रेशन होकर बाहर जा रहे थे, वो 3 साल से नहीं जा रहे हैं. लेकिन जितने भी गए हैं वो वापस आने के बाद बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको काम की तलाश में सब बाहर गए. बाकी की बेसिक फैसिलिटीज गांव में होनी चाहिए, वो धीरे धीरे आने लगी है. एजुकेशन की बात हो, हेल्थ की बात हो, वाटर की बात हो, तो बिल्कुल वो एटीट्यूड आज लोगों का दिख रहा है कि वो शायद वापस ना जाए. बात हो रही है यहाँ पर आत्मनिर्भर गांवों की, तो आत्मनिर्भर गांवों की अगर मैं बात करूं तो हमने 33 आइटम्स जो है वो आइडेंटिफाई की है. और वो हमारा एक जो पॉपुलेशन मैंने आपको बताया 3500 की पॉपुलेशन में एवरेज 44 लाख जो कुनरिया से, इस 33 आइटम जो है वो हम बाहर से ला रहे हैं. वो चीजें जो है हम अगर गांव में हैं और गांव में ही प्रोड्यूस कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं. तो ये लोगों को उस दिशा में मूव करने की जरूरत है. उस दिशा में हम काम कर रहे हैं. और जो लोग गांव में हैं और उनको काम नहीं मिल रहा, जो बाहर से आए हैं और उनको भी काम देना है, तो ये प्रयास करके हम आत्मनिर्भर बनाने का एक प्रयास कर रहे हैं. हमने 2 तरीकों से पूरा, जैसे जीडीपी होता है, हम मानते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पर ग्राम डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे तैयार कर पाए, या हम हमारे गांव में क्या जो है ये सारी चीजें जितनी भी पॉसिबल है वो बना सकते हैं या नहीं. दूसरा, क्लस्टर लेवल पर हम जा रहे हैं कि जैसे एक मिनट, हाँ वेल, तो जैसे एक क्लस्टर जो है वो पूरा मिर्च मसाला या इस दिशा में काम करेगा, तो दूसरा क्लस्टर है वो और चीजों में फोकस रखेगा. सबसे ज्यादा आशीष जी, मैं और सुनने वाले सभी को बताऊंगा कि किसी गांव से सबसे ज्यादा पैसा बाहर जा रहा है, वो एक जा रहा है मेडिकल सर्विसेज रिलेटेड पैसा जा रहा है, जो हमने अनुभव किया वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ. दूसरा जो पैसा जा रहा है वो
फर्टिलाइजर, सोचे समझे बिना लोग बहुत सारा फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, वो यूरिया के रूप में हो, एनपीके के रूप में हो, पोटास के रूप में हो, फास्फोरस हो। अब तो लोग जिप्सम भी डालने लगे हैं और बहुत सारी पेस्टिसाइड भी डालने लगे हैं। तो ये क्यों न हम गांव में ये सारी प्रोडक्ट बना सकें, क्यों न हम ये गांव में ये प्रोडक्ट हम ला सकें। तो बिल्कुल हो सकता है। साबुन की बात हो, तेल की बात हो, या बहुत सारे ऐसे अनाज जो हैं वो गांव में ही, जैसे कि हमारे यहाँ गेहूं बहुत अच्छे से हो सकता है, तो हमने फार्मर्स को भी तैयार किया है कि आप वो क्वालिटी के गेहूं दो जो मार्केट से आ रहे हैं। तो इस दिशा में काम करने से मुझे लगता है कि गांव आत्मनिर्भर बनेगा और लोग जो पलायन कर रहे हैं वो यहीं पर स्थिर रहेंगे। But yeah, quick translation. So with regard to the attitude of returning villagers and the creation of a locally vibrant economy, he's saying that why did people leave in the first place? It was because of the fact that there was not adequate livelihood availability and also lack of other basic facilities like, let's say, water or education or health. So if those situations can be created, which is exactly what they're trying to do in Kunaria, there is no requirement for people to move out. And he's hoping that everybody who has come back will actually stay on, because it's not that they want to move out into cities or industrial areas. They would much rather stay in the village if these facilities and livelihoods are available. One of the most interesting things they're saying is they've identified 33 items for which they are spending 44 lakh rupees a year. Salane? Monthly. Wow. Yeah. They're spending 4.4 million rupees monthly. This would be things like soaps and oils and whatever are needed on a day-to-day basis. They're buying it from outside. They're making big corporations even more bigger and more profitable. So why not produce all of that in the village itself? Whatever cannot be produced in Kunaria itself, they're thinking of a cluster approach. So maybe several villages together, some villages can make something, some can make others, and then they can locally exchange it. This is actually exactly the concept that Ilango from Kutambakkam, who Suresh knows, he spoke about in one of our previous Vikalp Vartas. And also that, this is interesting, I have not heard of this before. Instead of gross domestic product, which the country uses, which is actually quite a ridiculous figure, they are talking about a gram domestic product, meaning a village domestic product. So maybe using that as an indicator of how well the village is doing. He also mentioned that the biggest money outflow for the village is on medical services and on fertilizers and pesticides. There's no reason why much of that cannot be produced within the village. सुरेश भाई, उसमें खाली मैं एक जोड़ दूंगा कि फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड प्रोड्यूस करने के बदले क्या गांव ऑर्गेनिक खेती की तरफ जा सकता है, ताकि वो भी आपको लोकली प्रोड्यूस ना करना पड़े. I was just asking him that instead of producing fertilizers and chemical pesticides in the village, they could move towards organic farming. सुरेश जी, आप ऐड करना चाहेंगे उसमें? बिल्कुल जोड़ना चाहेंगे. एक्चुअली लोग पलायन हो रहे थे, उसमें एक सबसे बड़ा कारण ये भी था बच्चों का एजुकेशन. तो इस दिशा में भी हमने काम किया है और प्राइवेट स्कूल की बहुत सारी डिमांड आ रही थी. और बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं 25,000 50,000 फीस भर के. तो वो क्वालिटी एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में देने का प्रयास. आप म्यूट हो गए हैं. तो 37 स्टूडेंट्स जो है वो प्राइवेट स्कूल से मूव होकर वापस गवर्नमेंट स्कूल में आए. तो अब ये जो शहरों की तरफ का पलायन था, उसका एक रीजन एजुकेशन भी था. तो उस दिशा में वो पलायन है वो रुकेगा बिल्कुल. Suresh Bhai has added a very important point. Another reason for people moving out is the lack of good quality education facilities in the village, and also this demand for private education because the government schools are low quality. So what they are promoting is much higher quality in the government schools, and because of that, 37 students who were earlier in private schools have actually come back to government schools. So this is actually a fantastic reverse migration. There's very few places in India that this is happening. So इसके लिए बहुत बधाई सुरेश भाई. तो सुरेश जी, आखिरी दो सवाल बहुत जुड़े हुए हैं जो मौली और मीना पूछ रहे हैं. जो
जो मुझे लगता है कुछ हद तक आपने उसके बारे में पहले भी बोल दिया है, लेकिन अगर आपको कुछ और ऐड करना है तो मैं इस वजह से वो सवाल फिर से बोल देती हूँ कि बेसिकली आप किस तरीके से और पंचायत और जो विलेजेस हैं उन तक ये अप्रोच को जो आपकी प्रक्रियाएं हैं उनको किस तरीके से थोड़ा मतलब ब्रॉड कर पा रहे हैं या उसको उसको उन तक भी पहुंचा पा रहे हैं कि एक थोड़ी सी कलेक्टिव बहुत सारी पंचायतें या जैसे 632 जो पंचायतें हैं उनकी एक कलेक्टिव अप्रोच हो सके, उस तरह की प्रक्रिया की ओर कैसे आप बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं और मतलब और पंचायतें अगर ये करना चाहें तो उनकी रणनीति क्या होनी चाहिए उसके बारे में आप अगर कुछ कहना चाहें तो ये आखिरी सवाल है और इसके बाद हम इसका समापन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं वैसी 632 पंचायतों में ये सारी चीजें पहुंचे उसके लिए एसोसिएशन के हर सुरेश जी आपकी आवाज थोड़ी धीमे आ रही है। एक्चुअली कनेक्टिविटी का इश्यू था तो मैंने मेरे ठीक है आप बोलिए, मुश्किल नहीं है बट मिल रही है आवाज प्रॉपर हाँ मिल रही है एक्चुअली। तो शुरुआत मैंने पहले भी बताया कि 632 का जो पंचायतें हैं एक दूसरे से हम पेयर लर्निंग से सीख रहे हैं, ठीक है। तो एक दूसरे सारी चीजें शेयर भी और हमसे पंचायत प्रैक्टिस में ला रही है। एक दूसरा हम काम कर रहे हैं कि एसोसिएशन का एक मैगजीन है या मुखपत्र है, वो है बात स्वराजनी गुजराती में है और वो हर एक पंचायत में गुड प्रैक्टिसेस करने वाली पंचायतों की बातें 632 पंचायत तक शेयर हो रही है। तो ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं कि बाकी की पंचायतों को भी जो है ये चीजों में हम जोड़ सकें या ऐसी प्रैक्टिसेस जो अच्छी पंचायतें कर रही है वो हम कर सकें। एक कुछ चीजें मैं कहना चाहूंगा कि 14 स्टेट जो है मैंने विजिट किए हैं उसमें 23 पंचायतें हैं जो गुड प्रैक्टिसेस कर रही थी। मैं ओवरऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ तो 14 स्टेट में 23 ऐसी पंचायतें हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है। वो क्या है और क्लाइमेट एक्शन की बात मुझसे छूट गई थी तो क्लाइमेट एक्शन में हमने 69,000 ट्री है वो प्लांट किए हैं और उसमें से 53,000 जो प्लांट है अभी भी जीवित हैं। 3 साल में हमने है ये प्लांट पौधे लगाए हैं। Okay, quick translation. I might have been missing some things, but the question was about how is all this learning happening, taking place across a broader scale with other panchayats. So one is they have the association of Suresh bhai 225 पंचायत ना? नहीं 625 sorry 632 okay, association of 632 panchayats in Kutch. And so they are trying to reach, constantly have discussions and dialogues with these panchayats and reach a lot of these measures and lessons across to them. There is ongoing dialogue on Swaraj. So best practices from not just Kunaria but other panchayats also can be reached across to all the 632 panchayats. And also he has himself traveled in many parts of India, and there are examples of 23 good practices, 32 panchayats that are doing some really inspiring work. So that is also being shared with all the other panchayats from 14 states. Also, they have their own climate action plan in which they have planted 69,000 trees, of which 53,000 are surviving. इस बारे में एक चीज और मैं भी जोड़ूंगा कि हम अब ये कोविड-19 रिलेटेड जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वो सारी पंचायतों को कर रहे हैं। उस पंचायतों की बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है हम यहाँ पर हमारे लोकल न्यूज़पेपर में हर दिन या दूसरे दिन है वो पब्लिश हो रही है ताकि बाकी की और पंचायतों तक पहुंच पाए। हम ऑल इंडिया रेडियो यहाँ से ये प्रैक्टिसेस जो है वो और लोगों तक पहुंचे, इसके लिए ऑल इंडिया रेडियो भी हमें सपोर्ट कर रहा है और गुड प्रैक्टिसेस जो हम शेयरिंग कर रहे हैं उसके लिए प्लेटफॉर्म भी बहुत सारी एनजीओ हमें दे रही है। तो सेतु बहुत
सपोर्ट वहां पर मिल रहा है ड्राफ्टिंग के लिए या तो एसोसिएशन और सेतु साथ मिलकर गुड में रेडियो में मुख पत्र में है वो लोगों तक ज्यादा पहुंचे उसके लिए हम पहुंचा रहे हैं. Suresh bhai just added that all the good practices, best practices are also being shared through local newspapers and also through civil society organizations like Setu Abhiyan, so that other panchayats can also learn from what is happening in Punaria or other panchayats that are doing such good work. Okay, so I think हम वैसे टाइम से 15-20 मिनट काफ़ी आगे चले गए, पर बहुत ही अच्छा डिस्कशन था और शायद ये 15-20 मिनट कोई ज़्यादा समय नहीं है. तो एक क्वेश्चन है जो जूही पूछना चाहते हैं. जूही प्लीज गो अहेड. अगर आप, ये आखिरी क्वेश्चन होगा जो जूही पूछ रहे हैं और उसके बाद हम क्लोज कर सकते हैं. मुझे ये सवाल छाया बहन और भारती बहन को करना है कि ये जो हमारी ये महामारी है इसमें आपको जो औरतों का रोल है वो कितना महत्वपूर्ण लग रहा है? जो औरतों का रोल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है. हम ये पंचायत द्वारा हमने पहले से ही महिला सभा और सखी मंडल ऐसे पहले से ही, अभी तो कोविड-19 अभी शुरू हुआ है महामारी, पर ग्राम पंचायत पहले से ही हम इकट्ठा होके मीटिंग करते थे और हमारे एडोलेशन हेल्थ फ्रेंडली जो दर मंथ को हम एक शिविर बुलाते थे, उसमें ग्राम पंचायत का भी सहयोग होता था और ज्यादातर महिलाएं उसमें सहयोग देती थी. थैंक यू. और इसके साथ बोलिए भारती. बोलिए. हाँ, तो हम महिलाएं की बात करें तो अब बच्चों के साथ ज्यादातर महिला ही रहती है, इसलिए उसके एजुकेशन में भी महिलाएं बच्चों को ज्यादा पढ़ाती है और उनको स्कूल भेजती है, उनका होमवर्क चेक करती है, तो पुरुष से ज्यादा महिला ही इसमें ज्यादा जुड़ सकती है. थैंक यू. बहुत ही अच्छा सेशन था और बहुत सारे हमें कमेंट्स भी आ रहे हैं कि लोगों ने इसे बहुत एंजॉय किया. और पर्सनली 2 यंग लड़कियों को आपके साथ मतलब इस वेबिनार में साथ देखकर तो और भी अच्छा लगा और बहुत ही इंस्पायरिंग और बहुत ही पावरफुल और बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं, आप सब काम कर रहे हैं. तो बहुत बहुत शुक्रिया ये अच्छा काम करने के लिए और हमें इंस्पायर करने के लिए. And thank you all for joining this webinar. These Vikalp Varta series happen every week on Saturdays. If you need more information, you can visit VS Corona Times blog posts, and you can follow more on Vikalp Sangam process on vikalpsangam.org. And if you want to be added onto the VS list, please put in your email ID so that you can receive information for our next webinars. So thank you all for joining, and thank you Suresh, Bharti ji and Chaya for this wonderful session. Thank you so much. Thank you. बहुत बढ़िया रहा.